So, namaste everyone. Good morning, good evening, whatever time is yours. Good afternoon also for some of the people. So, hope you all are practicing the wisdom, whatever we are sharing here. Hope you are able to change your physical reality. At least few scenarios you are able to change. You are able to make some changes in your life. So the whole purpose of these meditations are to enable you so you can control the physical reality the way you prefer or you want. So not every want is a need. We need to understand that want can be anything, but need is what you need in this moment. So if you are able to control the needs, then it's really good one. So just close your eyes, and before closing your eyes, take a comfortable position. If you can't sit, you can also lie down, close your eyes, relax your body. Just repeat the mantra. मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ. I'm not a only a body, I'm a soul. Soul is nothing but the creator itself. I create my own reality. The energy of creator is unconditional love. Hence, my energy is also unconditional love. So my life purpose on earth is to become or to be unconditional love in each and every situation. मेरे जीवन का एक ही पर्पज है कि हर सिचुएशन में मैं अनकंडीशनल लव बनकर रह पाऊं, हर पल, हर नाउ मोमेंट में. और अगर कहीं पे भी मिसअलाइनमेंट होता है, if I am not able to be a unconditional love at any point of time, then there is a misalignment that I need to correct. We call it karma. So we have to take a karma there, action we have to take. तो अगर मैं कहीं भी अनकंडीशनल लव नहीं बन पाया हूँ या बन पाई हूँ किसी भी मोमेंट में, तो वो चीज़ मेरी लाइफ में रिपीट होती रहती है. एंड वेन एवर इट गेट्स रिपीटेड, जब भी वो रिपीट होती है, आई हैव टू बी अनकंडीशनल लव. मुझे वहाँ पर अनकंडीशनल लव बनकर रहना है. When we do a meditation, we get a lot of thoughts. What to do? Can we stop all the thoughts? Can we control all the thoughts? Answer is you cannot stop the thoughts. You have to control the thoughts. You have to process the thoughts. You have to see, because thoughts are coming from your local environment, from your universal environment, from your society, from everywhere. Thoughts are there in the air.
So there are so many thought exist in the environment, and based on our vibration we are attracting all these thoughts. पूरे एनवायरनमेंट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, अलग अलग वाइब्रेशन के, लो वाइब्रेशन से लेकर के हाई वाइब्रेशन तक थॉट्स एनवायरनमेंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और हम लोग यहाँ पर एक रिसीवर की तरह काम करते हैं, वी एक्ट एज अ रिसीवर। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, जिस वाइब्रेशन पे इस समय हम रहेंगे, उसी वाइब्रेशन के थॉट्स हम ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करने लगेंगे। कुछ थॉट्स हमारे लिए वैलिड हो सकते हैं, कुछ हमारे थॉट्स नहीं हो सकते हैं, इनवैलिड भी हो सकते हैं। जस्ट थिंक ओवर, जो थॉट्स आ रहे हैं क्या ये मेरे लिए वैलिड है? क्या ये थॉट्स मेरे हैं? क्या मुझे इनको रखना है? क्या मुझे इनको एनर्जी देना है? तो ये है द गाइडलाइन। If thought doesn't carry any joy energy, peace energy, harmony energy, love energy, excitement energy, or you are not passionate about something, then you may not want to retain those thoughts. तो अगर कहीं भी आपको जॉय नहीं, आनंद नहीं आ रहा है, शांति नहीं मिल रही है किसी भी थॉट को लेने से या प्रोसेस करने से या उसके बारे में सोचने से, या फिर आपको लव नहीं फील हो रहा है, आपको हार्मोनी नहीं फील हो रही है, आपको एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, तो आप उस, और वहां पे क्योंकि लव नहीं है, अनकंडीशनल लव नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें नहीं होगी। क्योंकि जब अनकंडीशनल लव होता है तभी लव, पीस, हार्मोनी, जॉय, हार्मोनी, ये सारी एनर्जी होती है, आपके इमोशंस आते हैं। तो अगर नहीं आ रहे हैं तो ये थॉट्स कहीं ना कहीं आपने दूसरे सिचुएशन से लिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेट अवे उन थॉट्स को प्रोसेस नहीं करना है। जस्ट हैव एन अवेयरनेस, आई नो थॉट्स आया है मेरे दिमाग में, इट केम टू मी, बट ये मेरे थॉट्स नहीं है। आप थॉट्स को स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं, उन पर एक्शन जरूर ले सकते हैं कि आपको वो चाहिए, या आप उनको लेट गो भी कर सकते हैं। बहुत सारे थॉट्स ऐसे होते हैं जिनसे आपका कोई रिलेशन होता ही नहीं है, देर आर मेनी थॉट्स, देर इज नो रिलेशन with you on those thoughts, so you can straight away ignore. मेडिटेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आपको थॉट्स को एकदम से स्टॉप कर लेना है और कोई थॉट्स आने ही नहीं चाहिए। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, फोकस। तो जब कोई चीज होगी नहीं फोकस करने के लिए, तो आप एक्शन भी नहीं ले सकते ना। तो एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं फोकस होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कॉन्शियसली हो, सबकॉन्शियसली हो, लेकिन एक्शन तो होता है। अगर किसी हैबिट को, किसी थॉट्स को आप बार बार प्रोसेस करते हो, एनर्जी देते हो, तो फिर आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली उन थॉट्स के ऊपर काम करने लगते हो, और आपको लगता है मैंने तो सोचा ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, फिर मुझे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है ऑल ए सडन, मुझे क्यों एकदम से बहुत लो फील हो रहा है। क्योंकि सबकॉन्शियसली कोई ना कोई थॉट्स प्रोसेस हो रहे हैं। क्योंकि जो फिजिकल रियलिटी एक इल्यूजन है, तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता रहेगा। तो इफ यू आर इन सर्टेन वाइब्रेशन, अगर आप किसी वाइब्रेशन के ऊपर हो और आप चाहते हो कि उस वाइब्रेशन के थॉट्स आप जो लो वाइब्रेशन में की रेंज में आते हैं अट्रैक्ट ना करें, तो उसका एक ही तरीका है,
आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा दीजिए, क्योंकि लो वाइब्रेशन थॉट्स, अगर आपकी वाइब्रेशन बढ़ गई है तो फिर वहां पर ज्यादा थॉट्स को आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ओनली वे you can control your thoughts to raise your vibration. So you can ask for the help from your higher self. Higher self is your non-physical higher mind who knows everything, who conceive your physical reality. Physical mind perceive whatever your higher mind is conceiving the reality. So you need to understand one thing. You have to raise your vibration. You have to go beyond the limit of low vibration thoughts. So the moment you start the meditation, your vibration will go high step by step. Then each step, you have to take action on your thoughts. Or when you are in that state, ensure you take action. And if you don't want those thoughts, straight away you can let go and say, this is not my energy. I am love. I am unconditional love. This thoughts is having fear. ये जो थॉट्स आ रहे हैं मेरे को, इसके अंदर डर है। डर मेरी ऊर्जा नहीं है, डर मेरी एनर्जी नहीं है, डर मेरी वाइब्रेशन नहीं है, मैं तो अनकंडीशनल लव हूं। तो स्ट्रेट अवे आप उनको एक्शन ले सकते हैं, जब तक कि कोई फियर आपको सर्व नहीं कर रहा हो। कई बार हमारे पास, हमें नहीं पता होता है कि किस वाइब्रेशन में जाना है, तो हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं किसी भी फियर के साथ लेकर के, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं आप मिसअलाइन रहते हैं। सो आस्क योर हाई सेल्फ व्हाट यू वांट। You want to be in a higher state. You want to go beyond the your low vibration thoughts state of mind. Only ways you have to work on your fears. जितने भी आपके डर है उनके ऊपर काम करिए, उनको रिजोल्व करिए। देखिए कि आप फियर वैलिड है या नहीं है, ये डर आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो हर एक्शन आप नाउ मोमेंट में लेते हैं, फ्यूचर तो होता ही नहीं है। जो पास्ट है वो रिपीट नहीं होता है। बहुत ही रेयर चांसेस है, ऑलमोस्ट नील, 1/इंफिनिटी। ऑलमोस्ट जीरो चांस है, नील चांसेस है कि कोई भी पास इवेंट रिपीट हो सकती है, क्योंकि हर थॉट की वाइब्रेशन अलग होती है। अगर सेम थॉट आप 10 टाइम्स सोचते हो तो उसकी वाइब्रेशन अलग होती है। और जब थॉट्स की और फीलिंग की वाइब्रेशन हर बार चेंज होती रह रही है, तो जो आप अट्रैक्ट करने वाले वो भी चेंज होगा। मिलता जुलता हो सकता है बट नॉट द सेम। सो फॉरगेट अबाउट द पास्ट। फ्यूचर डिटरमाइन होता है इस समय आप कौन सी वाइब्रेशन में है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू बी इन हाई वाइब्रेशन। सो इन 2026 अपना कोई भी एक एक्साइटमेंट चुन लो। कोई भी एक एक्साइटमेंट, कोई भी एक क्रिएटिव स्किल चुन लो जिस पर आप बहुत अच्छे हो, जिसको आपको हर वक्त काम करने में आनंद आता है। Choose one excitement, one creative skills that you want to work. It can be music, it can be dance, it can be automatic handwriting, it can be your increasing psychic power, it might be a meditation, it might be healing others, it might be uh, hypnosis, it can be any other thing. It may be past life regression, techniques, कोई भी एक अपना फील्ड जिसमें आपको एक्साइटमेंट फील होता है उस पर चुन लो। And whenever you have the low vibration thoughts, immediately start working on
these activities. अपने एक्साइटमेंट पे काम करते रहिए। अगर आपकी हायर स्टेट है तो फिर हायर स्टेट में फियर वाले थॉट्स आप अट्रैक्ट नहीं करते हो। उस समय जो थॉट्स आते हैं वो या तो लव वाले होते हैं या जॉय वाले होते हैं, क्रिएटिव और क्रिएटिविटी से रिलेटेड होते हैं, और कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे होते हैं, लव से रिलेटेड होते हैं, पीस, हार्मोनी, ये सारी चीजें आपकी वहां पे मिलेगी। So ask your higher self, if you don't know, what is your passion, what you are passionate about. Just feel connected to your higher self. फील करो कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो और अपने हायर सेल्फ को पूछो। First, you have to raise your vibration to feel, to hear your higher self. तो हायर सेल्फ क्या है? अनकंडीशनल लव। तो think about one person who loves you unconditionally, or even for some moment, if someone loved you unconditionally, आपका कोई भी रिलेटिव, चाहे वो ग्रैंडपा हो, आपकी नानी हो, वट एवर इज द रिलेशन, जस्ट थिंक ऑफ दैट, जिसने आपको कभी भी किसी भी पल अनकंडीशनल लव किया है, उनके बारे में आप सोचिए। फील दैट लव। उस लव को फील करिए। आप फील करिए कि जिसने भी आपको कभी भी अनकंडीशनल लव किया है, उन मोमेंट्स को याद करिए। सिर्फ उन मोमेंट्स को याद करना है जब आपको अनकंडीशनल लव फील हुआ है, एंड फील दैट एनर्जी, लिव दैट मोमेंट अगेन। Now go with the feelings, go with the love energy. Now ask your higher self. Say hi to your higher self. Your higher self is saying hi to you. Say I love you to your higher self. Your higher self is saying I love you. Now you ask your question. Please reveal me my excitements, my passion, my skills. Please reveal my life purpose. Now be in the love state and see what thoughts your higher self is sending to you.
Now feel your higher self is sending you his thought form, and you see the vibration on your forehead and your throat chakra. आप फील करिए कि आपके हायर सेल्फ आपको इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और आप उसको अपने थर्ड आई और थ्रोट चक्रा पर फील कर पा रहे हैं. Don't use your physical mind. We all have one life purpose: to live, to enjoy each and every moment, to live in a now moment. And to live in a now moment, इस मोमेंट में जीने के लिए, आनंद की ऊर्जा में रहने के लिए, whatever thought forms you are receiving from your higher self, जो भी thought forms आप higher self से सुन रहे हैं, remember those. I hope by now you have one or two minimum thoughts from your higher mind, from your higher self. उम्मीद करता हूं कि आपके पास एक या दो इस तरह के थॉट्स आपके हायर सेल्फ ने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं. नाउ इन सारे थॉट्स को प्रोसेस करो अपने हार्ट के साथ में, और अपने दिल से, हार्ट से पूछो जिनमें से आप इस समय नाउ मोमेंट में सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो, क्या करना पसंद करते हो. लिसन टू योर हार्ट व्हाट इट इज सेइंग. मैं हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ये मेडिटेशन कर रहे हैं या फ्यूचर में कभी भी ये मेडिटेशन करते हैं, प्लीज उनकी हेल्प करें. कि वो आपके इंस्ट्रक्शन को, आपके मैसेज को रिसीव कर सके. If you are finding it difficult, touch your feet on the ground. ग्राउंड के ऊपर अपने पैरों को आप टिका सकते हैं. एंड आई रिक्वेस्ट नाउ मदर अर्थ टू पास लव एंड लाइट एनर्जी टू योर बॉडी. क्योंकि मदर अर्थ और नेचर ये हमेशा अनकंडीशनल लव करते हैं. तो कनेक्ट विद मदर अर्थ, कनेक्ट विद द नेचर, you will get more energy.
जस्ट लिसन टू योर हार्ट। क्या आपको कोई गाना गाने की इच्छा हो रही है, डांस करने की इच्छा हो रही है, या आपको कोई पेंटिंग्स वगैरह करने का लग रहा है मुझे करना चाहिए, कोई पोइट्री मुझे करना चाहिए? जस्ट थिंक। या कोई नई क्रिएटिव स्किल्स जिस पर आप करना चाहते हो। या कहीं ना कहीं आपको दिल को लगा कि मुझे ये करना चाहिए। इफ एनी टाइम यू फेल्ट आई शुड वर्क ऑन सो एंड सो, सी what your high self showing you, what kind of thoughts you are receiving from your higher self. It might be from your childhood, it might be from some other person, it might be someone's hobby. हो सकता है वो आपको किसी के बारे में रिमाइंड कर रही है जो उनकी हॉबी है। एंड सी वेदर इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट। देखो क्या वो आपके दिल के बेहद करीब है क्या। It can be anything, doesn't matter whether it's small or big. It doesn't even matter whether you can monetize it or not. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो छोटा है या बड़ा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको बिजनेस या उससे पैसा कमा सकते हो या नहीं कर सकते। डजंट इवन मैटर। फर्स्ट वर्क ऑन योर पैशन। इसके लिए छोटा हो या बड़ा हो, उस पर काम करना शुरू कीजिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। विथ जीरो एक्सपेक्टेशन यू कीप वर्किंग and you will see your higher self is guiding you through synchronicity. अपने आप आपके हाई सेल्फ आपको उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जहां पर कि ये आपकी जिंदगी की सारी नीड को अपने आप फुलफिल कैसे होगी, उस तरफ आपको हाई सेल्फ लेते जाएंगे। Even a small thought can become a very big idea for you, life changing idea for you. When you are in a love energy, think about the creation, think about going extra mile. Now you feel you are a rocket. अपने आप को फील करिए आप रॉकेट हैं जो एक लॉन्चिंग पैड के ऊपर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। जस्ट फील यू आर अ रॉकेट ऑन अ लॉन्चिंग पैड एंड यू आर रेडी टू फ्लाई। नाउ वन साइड यू हैव योर पास्ट, योर फेलियर्स, other people's opinion on your creative skills, on your passion. The other side, you have the doubts, your doubts, future कैसा होगा, how the future will be, whether it will work or not, future में काम करेगा नहीं करेगा, all these thoughts on the other side. Now you know very well, if you want to go high, fly, you have to remove obstacle from both the ends, past or future, दोनों. So release the expectation. How it's going to work, what is going to happen. Don't think about this. Just release the thoughts. Whether I'll be able to monetize or not, just release the thoughts. और पास में अगर कोई भी एक्सपीरियंस है, just release those past experiences also. Now you visualize you as a rocket, now free from past and future expectation. Now with zero expectation, just keep flying in the air.
Now you, your hobbies, your passion, your excitements, and whatever you love to do, only those things are with you. Explore those things. अपने एक्साइटमेंट पर जब तक काम करते रहिए, क्रिएटिव स्किल तक जब तक काम करते रहिए, जब तक कि आपको लगता है कि इसके फर्दर में इसको नहीं ले जा सकती और आपको लगता है कि यही लिमिट है, देन आस्क योर हायर सेल्फ अगेन, हायर सेल्फ व्हाट इज नेक्स्ट। मुझे लगता है मैं यहाँ तक की कर पाई हूँ, मेरे को और आगे जाना है, प्लीज गाइड मी, आई नो आई कैन गो फर्दर। और तभी आप देखिए कि आपके हायर सेल्फ आपको फिर एक नया रास्ता ओपन कर रहे हैं, एक नया पोर्टल ओपन कर रहे हैं, एक नया गेट ओपन कर रहे हैं आपके लिए। जस्ट एंटर द गेट, again you will see infinity of possibility there. So always remember there are infinity of possibilities in each and every passion, excitement, any creative skills. Don't limit ever. अगर आपको लगता है कि वो लिमिट पर आप पहुंच चुके हैं तो extend your limit, ask your self for the help, ask your guides for the help, and you will get the direction from your higher self. अगर आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रह सकते हो तो इससे बड़ा कोई अबंडेंस हो ही नहीं सकता है, इससे बड़ी कोई धन दौलत हो ही नहीं सकती है। Because this is a state where everyone, all the yogis, all the saints, they want to be in that vibration. Consciously, you can create anything if you are in an unconditional love energy, because you are in a creator energy. अपने एंशियंट टेक्स्ट से देखिए कि एक ऋषि ने हाथ में वाटर लिया है और उसने कुछ भी क्रिएट कर दिया है। Why I am giving this example? Because everything is a consciousness. Whatever you see around you, all consciousness. You want to experiment it consciously, कोई भी एक चीज क्रिएट करो, ड्रीम में आपको नाइट को जब भी आप सोते हैं आपको दिख जाएगा, दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड इट। और ये लाइफ, फिजिकल लाइफ भी एक ड्रीम है, वी आर इन अ ड्रीम स्टेट। तो आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रह करके जो भी क्रिएट करोगे, you can receive those things in your life. This is what your power. अगर आप अपने एक्साइटमेंट के ऊपर काम करते हो, अपने पैशन के ऊपर काम करते हो, हर समय वही टास्क चुनते हो जिसमें आपको आनंद आ रहा है, जॉय आ रहा है, जो काम करने से आपको प्यार फील होता है, लव एनर्जी फील होती है, आपको हार्मोनी फील होती है, सब में आपको खुद को देख पा रहे हो, दूसरे लोग वही बात कर रहे हैं जो आप चाहते हैं और आपको सुनकर उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो समझ लो कि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में इस समय वाइब्रेट कर रहे हैं। बी इन दैट स्टेट। नाउ से थैंक्स टू योर हायर सेल्फ। अपने हायर सेल्फ को थैंक्स बोलिए जो भी थॉट्स उन्होंने आपको दिए हैं। इफ फर्स्ट टाइम when you are doing this meditation you are not getting any thoughts, try it again. हो सकता है इस समय आपके दिमाग में कुछ डाउट हो, remove those doubts. Remember the example rocket.
सारे डाउट्स को हटाना है, सारी एक्सपेक्टेशन को रिलीज करना है। देन ट्राई इट अगेन। आई एम कॉन्फिडेंट you will get the answers. Now bring your awareness to your physical body. अपनी awareness को अपनी physical body में लेकर आइए, and be in a thankful gratitude energy when you come out for your higher self. जस्ट अपने बॉडी को थोड़ा सा शेक कीजिए, मूव कीजिए, दोनों हाथों को रब कीजिए, अपने दोनों आईज पर लगाइए, एंड जस्ट ओपन योर आईज, जस्ट रब योर हैंड, feel the energy on your eyes, keep both the hands on your eyes, and slowly open the eyes. अभी आप अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। अगर आपके एयर सेल्फ को आपको कोई भी मैसेज रिसीव हुआ है तो यू आर लकी, फील फ्री टू शेयर। कुछ एक्सपीरियंस हुआ, किसी को एयर सेल्फ का कोई मैसेज फील हुआ, आज कुछ आया कि मुझे ये करना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए? आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर मैं शेयर करती हूँ। यस, सो पूनम जी इज गोइंग टू शेयर। लावा डोळ्याला लावायचं. म्यूट कर दीजिए। हम्म, सर मुझे कल रात से ही कुछ प्रोसेस हो रही थी, मेरे नाक के ऊपर, गले पर, कान पर, पूरा ऊपर का सिर वगैरह भारी हो रहा था। तो कुछ मेरी क्लीनिंग शुरू है इस समय, ऐसे बताया मेरे हायर सेल्फ में। और जैसे ही ध्यान में बैठे तो मेरी चेतना ऊपर की तरफ गई और मुझे 5 ऋषि दिख रहे हैं सर, जिनमें से जो एक ऋषि है वो कुछ लिख रहे हैं और संस्कृत है वो। मैं गई हूँ पास में और दूर बैठी हूँ, और फिर हम लोग ध्यान में चले गए सर। और जो लिख रहे थे ना वो कैसे थे, जो पूरे, जिनकी एक ऐसी चोटी रहती है पीछे से और बाकी के बाल नहीं रहते, वो लिखने वाले वैसे थे, और बाकी के जो 4 थे वो आजू बाजू में बैठे थे। फिर मैं गई हूँ, फिर वहां पर बैठकर अपने ध्यान शुरू किया है। जब ध्यान शुरू हुआ है सर, तो वो जो सर्कल है ना, पूरा एक बॉल बन गया व्हाइट कलर, और हम पूरा यूनिवर्स में घूम रहे हैं। वो बॉल है ना ऊपर की तरफ पूरा गोल 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 घूम रहा है, और लगातार वैसे ही चलते रहा सर। और बहुत कुछ देखने को मिला, ऐसे दिखाया जा रहा था कि बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मुझे उनके पास जाना है। तो जब हम आकर उसी जगह पर बैठ गए लास्ट में, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आपकी फिजिकल बॉडी को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। तो अगर कोई भी क्लीनिंग हो रही है शरीर में तो उसे डरना नहीं। आप कुछ भी हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना, और उस चीज के लिए कोई दवा मत खाइए। आपकी आंखों से बहुत पानी बह सकता है, आपके नाक से बहुत पानी निकल सकता है, और बहुत फीवर है ऐसा फील होगा। वो तो आपको फीवर नहीं है, वो आपकी क्लीनिंग हो रही है बॉडी की, फिजिकल बॉडी को तैयार किया जा रहा है। तो वो एनर्जी है, उस एनर्जी को रिसीव कीजिए। और पानी पी सकते हैं आप,
पानी पी लीजिए, फीवर नहीं है वो, ओके और ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाने वाली है 1-2 दिन में, तो मौन में रहिए और ध्यान में रहिए, ऐसा मैसेज दिया मुझे। ओके। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको जो मैसेज मिला है वो एक ही ध्यान में रहिए एंड रिसीव करिए मैसेज। जी। ओके। और वो जो संस्कृत में लिख रहे थे सर, तो वो क्लियर नहीं दिख रहा था मुझे। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे आप ध्यान करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है ये आपको आपकी भाषा में समझ आ जाएगा। ओके। तो आपका जो नेक्स्ट एक्साइटमेंट है वो है कि जो वो दिखा लिख रहे हैं संस्कृत जी। में या जो भी लैंग्वेज में उसको आप हाँ। समझ सको। हाँ सर। तो आपको उस डायरेक्शन में ध्यान रखना है। जी। ओके गुड। बस सर, फिर आगे अपने ओके awareness में। थैंक यू पूनम जी। ओके किसी और को कोई एक्सपीरियंस आया है हायर सेल्फ से? क्या गाइडेंस आई है? क्या करना है आपको? क्या आपकी स्किल्स है जो आप भूल गए हो, जिस पे आपको काम करना है? आपका हाईएस्ट एक्साइटमेंट क्या है? आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए? फील फ्री टू शेयर। आप हमेशा याद रखिए जितना आप फील जो भी फील करते हो उसको एक्सप्रेस करते हो, आप अपने थ्रोट चक्रा के जो ब्लॉकेज है उनको रिमूव करते हो। मुझे तो मोर पेंटिंग का ख्याल आया ओके कि मैंने अभी एक हफ्ते से बंद कर दिया था। मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लूं, तो मुझे वो वही ध्यान में आया कि मुझे करते रहना चाहिए एवरीडे थोड़ा बहुत। यस ओके गुड। तो पेंटिंग आपका एक्साइटमेंट है। यस। ओके गुड। सो विश्वास कुछ आया हायर सेल्फ से मैसेज? शैलेंद्र कोई मैसेज है आपको? स्नेहल जी आपको कोई मैसेज आया है? मुझे मैसेज नहीं आया है, लेकिन 5-6 दिन से ना गला बहुत खराब है, बहुत पेन हो रहा है, तो बार बार गले की तरफ ही ध्यान जा रहा था, शायद क्लीनिंग हो रहा है, ऐसा मैसेज आ रहा था मुझे। क्लीनिंग हो रहा है गले का। ओके और आपने जो ये बोला ना, वो क्या पैराशूट का नहीं, आपने क्या बोला था, यान का बोला था ना एक अभी। अच्छा रॉकेट लॉन्च पैड से। हाँ, रॉकेट लॉन्च का बोला था ना, तो जैसे मैं ऐसे जंप किया मैंने ऊपर, एक पैर पे ऊपर, और मेरे पंख फैल गए ऐसे। और जो पंख फैलते हैं ना, तब उसमें से गोल्डन डस्ट जैसे अर्थ पे गिर रहा है। और वो बहुत खुशी खुशी फील हो रहा था मुझे अंदर से कि ये ऐसा हुआ तो कितना अच्छा होगा। ऐसी खुशी फील हो रही थी अंदर से कि ऐसा ऐसा मुझे करना है, ऐसा हो जाए। तो आपके एयर सेल्फ ने आपको इनडायरेक्टली सिंबॉलिकली मैसेज दिया है कि अगर आप अपने पेशेंट के ऊपर वर्क करते हो, डाउट्स की एनर्जी हटा देते हो, पास्ट में जो फेलियर्स है उनके बारे में सोचना बंद करते हो, अपने आप को फ्री करते हो, हम्म। तो उसके बाद आपको विंग्स मिलते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में यही होता है, जब आप पुराने बैरियर्स को, सर्वाइवल लूप्स को आप तोड़ते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं जो आपका पैशन है, या आप और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, तो फिर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा अर्थ के ऊपर, क्योंकि वहां पे आपको विंग्स मिलते हैं। और जब विंग्स मिलते हैं तो आपके पास इन्फिनिटिव पॉसिबिलिटी अपने आप हो जाती है कि यू कैन गो मच हायर देयर। लेकिन अगर हम पैरों के ऊपर ही चलते रहते हैं, पैर हमारे रिप्रेजेंट करते हैं सर्वाइवल को, अगर हम लोग यही सोचते हैं कि नहीं हम लोग अर्थ के ऊपर ही कुछ कर सकते हैं, बट नो, जब आपको विंग्स मिल जाते हैं तो फिर आप एक नया वर्ल्ड भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो आपको जनरली अर्थ मतलब जब आप अपनी प्रेजेंट वाली रियलिटी में रह रहे हो वहां पे इतना नहीं सोच पाते, लेकिन जब उससे थोड़ा ऊपर जाते हो, विंग्स जाते हैं,
तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है अर्थ को देखने का, दुनिया को देखने का। फिर आप और ज्यादा हायर एनर्जी में जाकर और ज्यादा कनेक्ट हो सकते हो, उसके ऊपर और ज्यादा क्रिएटिवली काम कर सकते हो, उसको और नेक्स्ट साइट पर ले जा सकते हो। तो वर्क ऑन योर एक्साइटमेंट, जो भी आपके एक्साइटमेंट है उनके ऊपर काम कीजिए। अपनी क्रिएटिव स्किल देखिए, आप बचपन से लेकर क्या भूल गए हो। अपनी बॉडी के ऊपर भी काम कीजिए। हो सकता है कि पहले आप बॉडी पर बहुत ध्यान देते थे और बीच में कहीं ना कहीं वो गायब हो गया हो, तो देखिए आप क्या मिस कर रहे हो। तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर भी काम करिए। वो किया ही नहीं आज तक ना, अभी चालू किया है मैंने। इतने सालों में तो कभी सेल्फ प्ले में थी ही नहीं मैं। मैंने कभी यस, बॉडी को नहीं देखा है सर आज तक, अभी तक। इस यस। 6 महीने या साल भर में ही मैंने स्टार्ट किया है अपने आप को आपको देखना। पता है सेल्फ लव डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टू हमारा इम्यूनिटी। यस, ओके। इसी वजह से ये सब पेन हो रहा था। यस। सो थैंक यू सुनील जी, अपर्णा जी, आरके जी, वैशाली जी। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हिना बेना। Uh, I didn't get any message, but as you said, work on your hobbies or interests. I'm working on. Somebody called me a few days back, asking me why don't you educate the families how to recognize the symptom of the disease before they come up, so they can get a warning to go and see a doctor in an early stage. So I'm working on that, and teaching is my passion. ओके, या। सो कीप sharing your knowledge with others, whatever, whether it's small or big, doesn't even matter. And जैसे आपके you are feeling like you should work on the, जो उनके जो symbols क्या होते हैं। Yeah. Yes, so just document those things and publish it so people can get benefited out of it. Thank you. Thank you for your advice. Yep. आरके जी, Yes, sir. क्या मैसेज है आज सेल का? Yeah, I got an excellent, broad-minded thing which popping up was you guys have been so blessed to be part of this, divine soul group. That's all right. It's perfect that you guys have been progressing in a right path, righteous path, with the noble wisdom you're getting for free from the sources like the gurus and third eye masters like you guys. So as long as these things are going, it's all perfect. And also the conscious has been saying that it shouldn't be limited to you guys alone. And why don't you just be peep into the other unfortunate souls, those who already under the part of this divine soul group, yet they were not being conveyed or reached to this wisdom to them. Make a plan, a big plan, where this has to go and reach to each and every corner of the universe as much as I can, or you can, you guys can. So that is the purpose, the whole purpose. Not just limited to you guys, limited to 10, 20 souls alone, making you guys be happy and convinced. So this is the message is making me to be feel a little shy, be limited within ourselves due to the limitation of the times or whatever we just been say, complain in the life. Yes. Thank you, sir. So this was the message. So sooner or later have to Yeah, so you have to fly, spread the fly. awareness. Yeah, spread. Thank you. Okay, thank you, आरके जी। Yes, शैलेंद्र, एनी मैसेज? कुछ आया दिमाग में क्या करना है? सर मुझे बोल रहे हैं? हाँ, आप भी बता दीजिए वैशाली जी। जी, जी।
सर मुझे ऐसे आया है कि सर कभी कभी ऐसे होता है ना कि जैसे हम हमेशा ही बहुत कुछ अच्छा ही करते हैं, तो उसकी ना सामने वाले की कोई कदर नहीं होती है, तो थोड़ा रूड होके भी हम उसको बता सकते हैं कोई चीज, थोड़ा गुस्सा करके, पर हमको मालूम है अंदर से हमारे प्यार है। मेरे मेरे मुझे ऐसे ही आया सर आज आज। लेकिन आप कुछ गुस्सा भी करने के पहले एक चीज और प्रोसेस कर लीजिए कि वो आपकी लाइफ में क्यों हो रहा है। कहीं वहां पे जी। आपका लेसन तो नहीं है। हाँ हाँ सर, वो ही चल रहा है, वैसा नहीं चल रहा और है सर। और अगर आप अनकंडीशनल लव में हैं तो जी आपको ये भी देखना है कि आपका गुस्सा 15 सेकंड से ऊपर नहीं जा रहा है और वो आप उसको जी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। जी जी अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इसका मतलब आपका भी लेसन है वहां पे। जी सर जी। यस। सर कभी किसी को कुछ नहीं बोला सर, मैंने कभी नहीं बोला। नहीं, गुस्सा पता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है हमारे बॉडी का कि जब बहुत सारी जी एनर्जी हमारे अंदर स्टक हो जाती है तो वो जी बोलते हैं ना अंदर का जो जो हमारा सच होता है। जैसे मैं बोल जी रहा था ना थॉट चक्रा को ओपन करो। जैसे एक जी। पाइप के अंदर बहुत सारा कचरा आ जाता है ना तो फिर एक दिन हाँ क्या होता है बहुत प्रेशर के साथ में पानी को निकाल के वो कचरे को उड़ा देना पड़ता है। तो जी एग्जैक्टली वही गुस्सा भी उसी तरह डिजाइन किया गया है हमारी फिजिकल रियलिटी में कि अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि व्हेन पीपल आर ट्राइंग टू सप्रेस यू आपको हर तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट कम आउट ऑफ दैट। लेकिन आपको ये देखना है कि इट शुड बी अ टाइम लिमिट हैज टू बी देयर कि आपने ओके गुस्सा किया उसके बाद यू आर नॉट कैरी फॉरवर्डिंग दैट एनर्जी। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पूरा अपना गुस्से वाली बातें बोल दी और उसके बाद मैं जी गुस्से में घूम रहा हूँ और ऐसा कर रहा हूँ। जी सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जी सर। आपको यूज योर एंगर एज अ टूल। कई बार गुस्से को यूज करो आप कुछ कर दिखाने के लिए। ये जैसे लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सर। पाओगे जिंदगी में नहीं कर तो उनको फिर वो गुस्से को यूज करो। गुस्सा भी एंगर एक एनर्जी होता है। तो जी वो जी, गुस्से हाँ इज ए सर मुझे नेगेटिव यही बोलना एनर्जी। था। गुस्सा एक नेगेटिव एनर्जी है बट आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ट्रांसम्यूट कर सकते हो इन अ मोर किसी का अच्छे क्रिएटिव और करने के लिए पॉजिटिव। सर। या जी 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 सर, तो थैंक यू गुस्से सर। या गुस्से को यूज करो वो सिचुएशन से बाहर आने के लिए अपने आप को जी जी एक्सप्रेस करने के लिए। जी कई बार आपने देखा है छोटे बच्चे उनको सब घर में दबाते रहते हैं। जी। वो हाँ कुछ नहीं बोलते चुप रहते हैं और एक दिन उनका दिन आता है बस वो फिर वो बोलते हैं बाकी सब सुनते हैं। यस सर सर। तो बराबर यस। बोले सर। यस तो यू कैन यूज दैट अपॉर्चुनिटी। गुस्से को ऐसा नहीं कि हर पल थोड़ा थोड़ा निकालते रहोगे। उस एनर्जी को रखो उसको फिर एक यस दिन अपने लिए यूज करो उसको टू जी एक्सप्रेस योर सेल्फ नॉट टू हर्ट एनीबडी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ पॉजिटिव वे में यस उसको आप यूज कर सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। यप। So anyone else want to share anything before we wind up? So thanks everyone for joining today's meditation session. Hopefully इसको आप repeat करिए and I'm sure you are going to get some of your skill set what you forgot or maybe what you don't even aware of those things. So your higher self may pass those information to you during the meditation. So work on your excitement because excitement is the key to get over और लाइक टू क्रॉस दैट केओस वाला जिंदगी को बाहर निकलने के लिए क्योंकि इट्स लाइक टेकिंग द फ्लाइट पूरा रॉकेट बन जाते हो आप। पूरे अपने बर्डन पूरा फ्री करो जस्ट गो हाई। तो सबसे पहले ट्राई टू बी इन अ लव एनर्जी थिंक ऑफ। कई बार हमें लगता है कोई हमें प्यार ही नहीं करता और हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। सो रिमेंबर ऑलवेज डू द अदर वे। ऐसे टाइम में राइट समवेयर यू आर लव एंड यू आर लव्ड। कहीं पे लिख लो इसको और तुरंत आप उसको देखिए कि यस आई एम लव एंड आई एम लव्ड। फटाक से याद करो कौन मुझे प्यार करता है। ये मत सोचो कौन प्यार नहीं करता कौन मुझे प्यार करता है। फिर काउंट करो 1 2 3 सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है। फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो।
So thanks everyone. Thanks for joining the meditation, and again we'll see you tomorrow. Yes, RKG, you said you have some doubts. पूछिए. एक्शन करने वाले का सॉल्यूशन होता है और पोस्ट करने की पोस्ट करती है उस साल प्रिंसिपल ने हमारी क्लास की ड्यूटी लगाई शैलेन, कुछ शेयर करना चाहते हो? लेकिन 10th क्लास के कुछ बच्चे हर साल पैसे देने में अड़ते थे और जो उस साल मेरे सामने आ गए वो पिटे फिर वो और लड़कों को लाए मुझे पीटने के लिए वो सब लड़के भी पिटे हेलो। हाँ, पता नहीं वो सुबह 7 बजे उठ गया था और जैसे ही आपके बारे में सोचता हूँ कुछ वाइब्रेशंस आते हैं और थोड़ा लेट हो गया था आपको ज्वाइन करने में, लेकिन जब आपने बोला तो कि जो चीज आपको अच्छी लगती है अनकंडीशनल लव, वो जब सोच रहा था तो कुछ चीजें मेरे दिमाग में आई कि मुझे बहुत 6-8 महीने से भूल गया था। वो चीज खराब है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आज उसको ठीक करूंगा बस। ओके, गुड. आज ही करूंगा ताकि कल नए थॉट आए। यस, यस. जब जो भी टास्क हमारे हायर सेल्फ हमें बोलते हैं, एक्साइटमेंट डालते हैं, अगर हम उसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं तो वो फिर हमें नेक्स्ट टास्क दे देते हैं जिसके ऊपर नेक्स्ट एक्साइटमेंट देते हैं जिस पे हमें काम करना है. तो अपने एक्साइटमेंट पर, वो टास्क पर जब तक काम करते रहो जब तक कि लगता है कि इसके आगे मैं और कुछ नहीं कर सकता इस पल में. हो सकता है बाद में हायर सेल्फ उसका एडवांस वर्जन कुछ और बनवा दे. तो कीप वर्किंग ऑन दैट. हाँ बॉस। ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच बॉस। लव यू बॉस। या, लव यू शैलेंद्र. Yes, sir. I have a final quick. इस एनर्जी को रिलीज होने जाने दीजिए भाई साहब, रोकिएगा मत, ऐसे बता दीजिए. शैलेंद्र, अपनी एनर्जी को रिलीज कर दो. वो अगर आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए, उनको रोकना नहीं हाँ, भाई साहब. रोकना नहीं, उनको रिलीज कर दो. अगर ऐसा लग रहा है अंदर से कुछ आ रहा है, वो रिलीज हो जाएगा ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा. जस्ट रिलीज द एनर्जी. हाँ. Yes, sir. Have a quick, if time permits. If not, then यस, यस. आरके जी बोलिए. yeah, please. See, this is a scenario which is making me to have a kind of a discussion with myself. That is, one thing is one has to work with the excitement theory for sure, and number two, there is no good and bad. It's a belief system. What really it is. By taking these two things on the grounds, so now the Pongal is coming. Pongal is the thing. It comes all the villages and all the environment where I am now currently. It's a betting environment. So complete the betting. People are being so much excited to exchange the energies in terms of bettings. Right. So in that case, is really recommended to go with based on the excitement theory, to go for bettings on and on and off. Of course, it may make you rich or may come to drop to be poor. That it doesn't matter, because as long as we think that we are on a paid trip, then it really doesn't matter. One aspect, and number two, and if we really keep on just been spending for it could be a bad or good. That's again it's a belief system what we really make up. And if that is the case, then how does it work? Like, say, if I keep on, a person wants to go with an excitement, keep on betting, go on, and then go till he gets debt. But anyway, it's not debt. It's be an observer, not a victim. In that aspect, like, can we be move on with the excitement theory like this, or how the scenario is like? I mean, you got my point. What exactly I'm trying to say, please? Yeah. So first thing is that everything is an experience. There is nothing good or bad, as you already mentioned, right? So you already know there is no good or bad. Everything is an experience. If Right. somebody wants to experience betting thing also, that's why they are doing it.
अगर वो बेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये कि उनके हायर सेल्फ ने कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ सिखाना है वहां से। ओके ओके तो वो जो लर्निंग आप बोल रहे हैं ना, वो हार भी सकते हैं, डाउन भी हो सकते हैं, अप भी जा सकते हैं, दोनों ही एक्सपीरियंस है, अच्छा और बुरा। राइट तो हो सकता है उनको बेटिंग से कुछ सीखना हो। से फॉर एग्जांपल महाभारत में एक जो हमारा बताया गया था, राइट, जो उन्होंने खेल खेला था वहां पे। या यस यस हाँ, शकुनी या वहां पे प्लेस वहां पे भी बहुत सारे लर्निंग्स थे। सो लर्निंग्स, एवरीथिंग इज अ एक्सपीरियंस। और कई बार ऐसा भी होता है कि हायर सेल्फ को आपकी लाइफ का थीम चेंज करना होता है। जैसे किसी को अमीर से गरीब बनाना होता है और किसी को गरीब से अमीर बनाना होता है ऑल ऑफ सडन। तो दोनों चीजों को भी यहीं पे स्विच किया जाता है, रियलिटी और डायमेंशन चेंज की जाती है। तो हारना जीतना इज जस्ट एन इवेंट, बट समटाइम्स योर हायर सेल्फ वांट यू टू हैव एक्सपीरियंस मे बी एज अ रिच और पुअर। तो फिर वो उसको भी आपको एक्सपीरियंस करवाता है। डायमेंशन चेंज करने के लिए भी ऐसी चीजें यूज होती हैं। सो इफ देर इज अ एक्साइटमेंट, अगर आपको फील हो रहा है, गो अहेड विद दिस। लेकिन बी रिमेंबर, कहाँ पे मैंने बोला ना, कहाँ पर रुकना है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो जहां तक आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ इज ओके, लेकिन देर इज अ वन लिमिट इन एक्साइटमेंट, जहां पर आइड सेल्फ आपको कहते हैं कि जस्ट स्टॉप हियर। लेकिन आप कहते हो नहीं, स्टिल यू गो। फिर आपकी वाइब्रेशन लो होते होते फिर आपको दूसरी रियलिटी में भी शिफ्ट कर देती है। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन अगर हाई जा रही है, इफ यू आर गेटिंग गुड मनी, आपकी वाइब्रेशन हो सकता है हाई जा रही हो। हाई जाते जाते हो सकता है कुछ ईगो आ जाए या कुछ और आ जाए, या फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे और करना है, और फिर आपको एक बार हारे, फिर वो हार गया, फिर हार गया, हार गया, फिर वापस नीचे आ जाओ। सो इट कैन बी वन ऑफ द एक्सपीरियंस आल्सो। सर, जो भाई साहब ने अभी बात की है ना, हम्म। आपके जी से पहले, ऐसे दिखाया जा रहा है सर कि इनका जो सारे चक्रास हैं, एकदम से बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गए थे सर। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक। शैलेंद्र, तुम्हारे लिए ये कि तुम्हारे सारे चक्रास एकदम से एक्टिवेट हो गए थे। और ये एनर्जी एकदम रीढ़ की हड्डी से इस तरीके से ट्यूबलाइट के जैसे प्रकाशित हुई है सर, जिससे इनको फियर आ गया इस लाइफ में, ये कुछ मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, अब मैं नहीं कर सकता आगे कुछ। और ये इन्होंने जो भी ध्यान वगैरह करते थे, उससे फियर आ गया सर। ये करना नहीं चाहते आगे, इनको लग रहा मैं कुछ भी करूंगा या किसी से कोई भी गुरु का मार्ग अपनाऊंगा या ध्यान की कोई विधि को करूंगा तो मुझे कुछ तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, इनके सारे चक्रास एक्टिवेट हो चुके हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ गई है बॉडी में। और या उस एनर्जी से इनको फियर आ रहा है सर कि मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन ये एनर्जी जब बढ़ी है तो इनको किस काम में यूज करना है, कहाँ पर अरे लगाना है, ये इनको समझ में नहीं आई बात सर। तो इस एनर्जी का यूज करना है, इससे डरना नहीं है आपको। और अगर कभी आपको डर आ रहा है, लग रहा है बेचैनी हो रही है, तो आप किसी भी झाड़ को पकड़ के हक करके मदर अर्थ को बोल सकते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी आई है वो मदर अर्थ आप ले लीजिए। और आप डरिए मत, जो भी हो रहा है आप डरिए मत उसके लिए कि मैंने कुछ ध्यान किया है तो इससे कुछ गलत हो रहा है या आगे मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा मत सोचिए आप। एनर्जी एक्टिवेट हुई है बहुत तेजी से आपके अंदर, और आपने उसको फियर में बदल दिया है। इन्होंने एनर्जी को फियर में बदला है सर। तो शैलेंद्र, आपको देखना है कि इस एनर्जी को आप, जो अच्छी एनर्जी है ना, उसको पॉजिटिव वे में ले और आगे बढ़ते रहें। तो उनको अपना डर हटाना पड़ेगा ना सर। वो डर को नहीं हटा रहे हैं, वो उसी डर में भी है। मैं शायद कुछ काम करूंगा, वो वो सारा स्टेट में से अगर बाहर आऊंगा तो दो दो चीज होगा कि एक तो मेरा एनर्जी डिसिपेट होगा, दूसरा जब एनर्जी डिसिपेट होगा तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं
मैं फालतू में डर रहा था। यस, डरने की जरूरत नहीं है। डरिए मत भाई साहब, वो एक बिल्कुल भी। प्रोसेस है, वो एक प्रोसेस है कि जब भी हम हायर एनर्जीज में जाते हैं तो थोड़ा सा एक फियर आ जाता है एनर्जी को देख करके। सो डोंट वरी अबाउट दिस, उसको रिलीज करिए। बस आप वी आर देयर। प्लीज प्लीज छोड़ना नहीं, बिल्कुल, वी आर देयर विद यू। छोड़ना नहीं बस। यस। वो मतलब मुझे पता नहीं है ठीक है, एनर्जी डिसिपेट करूंगा, यस। शायद नॉर्मल होगा सब। यस, हो जाता है वो नॉर्मल, डोंट वरी। अभी पता नहीं किसी ने बोला था कि आप नंगे पांव बैठो, वो, उसके बाद मैं कुछ रूम में आके नंगे पांव बैठा हूँ। यस। अभी अभी झाड़ पकड़ने के लिए तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ बॉस। मैं 7 बजे से सोच रहा था कि आज अटेंड करूंगा, आज अटेंड करूंगा, उसके बाद पता नहीं तबीयत बिगड़ गया। और कई नौ बार बजे हमारे टेस्ट भी होते हैं कि हम कितने डिटरमाइंड है अगले स्टेप पे जाने के लिए, वो टेस्ट तो होते हैं। 9 बजे हिम्मत ही नहीं हो रहा था बस कि मैं ऑन करूं। फिर मैंने बोला कि ऑन तो करना पड़ेगा, बोला था मैं जाऊंगा। फिर मैंने ऑन किया, लाइट बंद करके ऑन किया ताकि कुछ दिखे नहीं। ओके, 1 मिनट के लिए मैं एक ब्रेक चाहूंगा, और जब तक आप है ना अपने आप को शांत करो, 1 मिनट। ओके, तो जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। तुम सेफ हो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे हायर सेल्फ तुम्हारे साथ हैं। और जो भी एनर्जी आई है वो डाइजेस्ट करने के लिए आई है, उसको ग्राउंड करो। जैसे मैंने बताया था, मदर अर्थ से कनेक्ट करो, अपनी नाभि से वो जो एक कोड कनेक्ट करो मदर अर्थ को, एंड जस्ट ट्रांसफर द एक्सेस हीट देयर। और जो फियर है उसको ट्रांसम्यूट करो लव एंड लाइट एनर्जी में, ताकि इस ठीक है एनर्जी बॉस। को और यूज कर सको और अपनी पावर को जागृत करने के लिए। ओके। अभी कैसा फील ओके। हो रहा है भाई साहब? ओके। ओके बॉस। यस। ओके। ओके। ओके, यू आर सेफ, थैंक यू बॉस, थैंक यू यू बॉस, आर लव्ड, यू आर लव्ड। थैंक यू बॉस, आई लव यू टू बॉस। आई लव यू टू। हाँ ओके, चलो boss, फिर। यस, रिलैक्स रिलैक्स। जस्ट टेक 3 डीप ब्रेथ्स, 3 गहरी सांस लो, एंड फील द लव। भाई साहब, आप ना फोन कर लीजिएगा बाद में, आपकी एनर्जी को क्लीन कर देंगे और आपको और अच्छा लगेगा। तो ठीक जो है मैम, एनर्जी आ रही है उसको रिलीज कर दीजिए, जाने दीजिए उसको। ठीक है मैम। जी, बिल्कुल डरना नहीं, थैंक यू देखो आप मैम, बिल्कुल एकदम अच्छा फील करेंगे आप। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ठीक है। सो बॉस थैंक्स। ठीक है या, बॉस। ठीक है। तो मिलते हैं बाद में, और अगर आपको लगता है तो कॉल कर सकते हो बाद में, ठीक है। हाँ बस करूँगा, ठीक है। करूँगा। ओके, थैंक्स थैंक यू एंड बॉस, लव यू, लव ऑल ऑफ यू। थैंक यू बॉस।